Namaste. Hello and welcome to Dr. Varsha Gaitonde's channel. In this video, we shall discuss about plant defense priming. As you know, plants are often stressed with two important factors, that is biotic and abiotic stress. If we consider the both shares equal part, and in our day-to-day life, we may see biotic stress as a major factor affecting the plants. Among them, insect stress is 25%, that is the stress caused by insects, 20% from pathogens, 6 to 8% from vertebrate pests. If we take the abiotic stress, crop loss is more than 50%. Even it may be 100%, which depends on certain species of the plants or different kinds of the plants. Plants have evolved various strategies to defend themselves against stress. Although some of these strategies are constitutive, that means that is present all over the time in the entire life cycle of any plant, or maybe for a certain period, like if any infection or pathogen infection is happening, then only the stress response is occurring. That is nothing but the facultative behavior of response. As early as 1933, priming, called sensitization at the time, was widely accepted to be the pivotal phenomena in systemic plant immunity. Priming has now proven true as a critical process in various types of systemic plant immunity. These include SAR and ISR, that is systemic acquired resistance and induced systemic resistance. Remember, these two phenomena are very important in plants' life when we talk about the stress conditions. Induced systemic resistance is the second one. The resistance provided by systemic fungi or symbiotic fungi, beta aminobutyric acid induced resistance, we popularly call it as BABA IR, and wound induced resistance. Now let us talk about priming. What exactly is the definition? Priming is the phenomena that enables cells to respond to much lower levels of a stimulus in a more rapid and robust manner than non-primed cells. That means with minimum kind of, or in the beginning only we are training some cells so that when the wide kind of stress is occurring, the plant is ready to defend itself. That is nothing but priming, or we are training it in the initial stage for a big war. That is nothing but priming. Cell priming involves accumulation of signaling components that are not used until challenge exposure to stress. Here pictorially it is represented when defenses of plant is normal. Primed means plant defense is open, means plant can tolerate or it can defend itself against any kind of stress provided to some extent. The phenomena is not 100% true. I'll discuss it later in the limitations. So let us talk about the two important phenomena, that is systemic acquired resistance and induced systemic resistance. First one is systemic acquired resistance or SAR. This is a type of broad spectrum immunity in plant. This is induced by local contact with a MAMP or PAMP or effector and depends on the plant hormone salicylic acid. This factor is also very important to remember. That is, systemic acquired resistance is associated with MAMP, PAMP and hormone induced by salicylic acid. So let us see what is MAMP and PAMP. MAMP is microbe associated molecular pattern. This is a molecular signature typically of whole class of microbes. Their recognition plays a key role in innate immunity in plant and animals. Innate means the incidental immunity. Plants' inborn immunity is nothing but innate immunity. For that, MAMP is very much important. Second one is pathogen associated molecular pattern. This means molecular signature typical for potential microbial pathogens of a given host organism. That means when it is attacking, then the signals are expressed. The second kind is induced systemic resistance. This is a kind of systemic broad spectrum immunity in plants. This resistance is elicited by colonization with selected strains of non-pathogenic
plant growth promoting rhizobacteria and depends on the plant hormones ethylene and jasmonic acid. Here the hormones responsible are very important. In systemic acquired resistance, salicylic acid is involved, and in case of induced resistance, ethylene and jasmonic acids are involved. So coming to the signaling, how the signaling occurs with the help of different hormones or the acid regulators in plants. As you can see, this is one entire cell. Okay, if you take this, in this cell you have the outer cell wall, then the nuclear here you will find the nucleus inside, and inside nucleus you will be finding the chromosomes. Okay, this is the entire system where signals transmit from outer membrane or outer environment inside the cell wall, then it transmits to the nucleus, and the process entirely starts there and functions in that. So how it works means, here the pattern recognition receptors, this is nothing but the pattern recognition receptors. In the first picture you may see what it will do. There will be receptors, signals. Receptors function is taking the signals and passing it to the nucleus. From there again the co-signals or the counter signals will come and they will act in the defense process. So here the cellular signal amplifiers will be present inside the nucleus. There MAMP and DAMP will be functioning, then effector molecules will also be functioning there. So how it all works: perception of MAMP, DAMP, pathogen effector or abiotic stress when we are imposing, then what will happen? Induced activation of signal amplifier lead to normal initiation of defense. In the second case, priming induction stimulus initiating accumulation of dormant signal amplifiers. Sometimes it responds quickly, sometimes it takes the dormant stage, means takes somewhat more time to respond. Then what will happen? Perception of MAMP, DAMP, pathogen effector or abiotic stress in this primed cell with enhanced defense capacity, means it will be accumulated for a certain period of time. After certain period of time, the enhanced defense mechanism bursts and induced activation of more signal amplifiers causes enhanced initiation of defense. Here again you may see the same things, that is microbe associated molecular pattern and damage associated molecular pattern. Here microbe associated molecular pattern, this gives signals typical of whole classes of microbes. Their recognition plays a key role in innate immunity in plants and animals. Whereas for damage associated molecular pattern, here signal arising from plants because of damage caused by microbes, originally referred as endogenous elicitors. Coming to induced resistance in context of priming. What are the chemical things exactly associated with systemic acquired resistance and induced resistance? I am going to tell you here, as I have already discussed salicylic acid and ethylene and jasmonic acid in the previous slides, but here you will get a clear picture. In SAR, chemical priming agent follows this pathway. Here salicylic acid is mediated, pathogenesis related protein or PR protein expression is characterized. Whereas in case of induced resistance, most of the biopriming agent follows this kind of thing. Jasmonic acid and ethylene are involved in this. Then LOX gene activation is a characteristic feature of induced systemic resistance. In this figure, the plant pathogen interaction is clearly defined. Here elicitor pathogens, osmotic stress, temperature stress, all biotic and abiotic stress are imposed. At that time, pathogens BABA, SA, BTH, rhizobacteria all are associated to give a specific kind of priming activity. Here plant cell is involved. Proteinated induction of defense genes, protection against abiotic cells, then proteinated induction of defense genes and antimicrobial compounds, protection against biotic stress, means
all components are responsible. It is not that some components are responsible for abiotic stress and some for biotic stress. When the priming it is imposed on the plant, it is equally responsible to fight against biotic as well as abiotic stress, provided some components may be involved for one path and some other for the other kind of stress kind. Okay, so next is primed state. प्राइम्ड स्टेट क्या होता है? इट इज़ द फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ प्लांट दैट हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू प्राइमिंग। एक फिजियोलॉजिकल स्टेट को ही हम प्राइमिंग स्टेट बोलते हैं। यूजुअली स्टार्ट्स ऑन एक्सपोजर ऑफ सच प्लांट टू स्ट्रेस। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, जब भी एक स्टिमुलस और एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या होता है? मे बी पैथोजन अटैक और इम्पोज्ड स्ट्रेस। तो उसमें क्या होता है कि एकदम रिस्पॉन्स बढ़ जाता है और डिफेंस एक्टिविटी का पीक कर्व लेता है। दैट इज़ नथिंग बट द प्राइमड स्टेट। नेक्स्ट इज डिफेंस प्राइमिंग। दिस इज टिपिकली बेस्ड ऑन स्टिमुलाई विथ इंड्यूसेस प्राइमिंग। 3 काइंड होते हैं: नॉर्मल प्राइमिंग बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देन केमिकल प्राइमिंग बाय ट्रीटमेंट विथ केमिकल्स, and then constitutive priming, which is alterations of specific defense responsive constitutive genes. 3 काइंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए: नॉर्मल प्राइमिंग, केमिकल प्राइमिंग और कॉन्स्टिट्यूटिव प्राइमिंग। प्राइमिंग इवेंट्स कैन अकर एज अ रिजल्ट ऑफ इंटर इंडिविजुअल और इंटर स्पेसीज कम्युनिकेशन लाइक इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस मीडिएटेड बाय राइजोबैक्टीरिया, माइकोराइजल फंगाई। जैसे आप जानते हैं ये सब एसोसिएशन होता है प्लांट माइक्रोब्स इन सारे के बीच में, और विरुलेंट और अविरुलेंट पैथोजेंस, और बाय नेचुरल और एक्जेनिक कंपाउंड्स। प्लांट्स रिमेंबर सच इवेंट्स लाइक प्राइमिंग मेमोरी। मेमोरी क्या होता है? जब प्रीवियसली प्राइमिंग हुआ है उसके बारे में प्लांट एक बार याद रख लेता है, और जब भी सब्सिक्वेंट स्ट्रेस अक्वेंट होता है उस टाइम में भी जो डिफेंस रिस्पॉन्स को एक्ट करने के लिए या उसको एक्सप्रेस करने के लिए ये हेल्प होता है। जैसे कि एक बार हमने हेपेटाइटिस का वैक्सीन ले लिया तो क्या होगा? वेन एवर द थिंग इज और द हेपेटाइटिस वायरस इज ट्राइंग टू अटैक टू अस, द डिफेंस एक्टिविटी इज प्रोसेस्ड। यही होता है प्लांट में भी। ओके, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ primary stimulus or priming stimulus or initial trigger for priming and the pathosystem involved or target of priming stimulus, it can display a diverse set of defense mechanism. तो अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट प्राइमिंग टेक्निक्स। ओके, तो प्राइमिंग टेक्निक्स में पहले आएगा कि हाइड्रो प्राइमिंग, which is achieved by soaking of seeds in water. ओके, हाइड्रो प्राइमिंग करने के लिए हमें पानी का ज़रूरत होता है, जैसे कि हाइड्रो होता है वाटर। देन ऑस्मो प्राइमिंग। ऑस्मो प्राइमिंग में बाय एडिंग ऑस्मोटिकम लाइक और ऑस्मोटिका लाइक मैनिटॉल, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल और पेग। सॉलिड मैट्रिक्स प्राइमिंग क्या होता है? इसमें कैल्सिनेटेड क्ले और वर्मिक्यूलेट ऐड करते हैं। देन इन कीमो प्राइमिंग बेंजोथाइडिजोल, बीटा अमीनो ब्यूटारिक एसिड और बाबा और अजियोलिक एसिड, पाइपकोलिक एसिड, ये सब यूज़ करते हैं। देन इन हैलो प्राइमिंग, हैलो का मतलब होता है सॉल्ट, तो सॉल्ट्स ऑफ सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट, ये सब यूज़ करते हैं। बायो प्राइमिंग में लिविंग ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स यूज़ करते हैं, जैसे कि ट्राइकोडर्मा स्पीशीज़, plant growth promoting rhizobacteria, that is PGPR, plant extracts, etc. अब आते हैं मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स ऑफ डिफेंस प्राइमिंग। तो 3 मेन मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म होता है। फर्स्ट वन, एलिवेटेड लेवल ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर, फिर डॉर्मेंट माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेस, देन क्रोमैटिन मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनहांस्ड लेवल ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर। इसमें क्या होता है? प्राइमिंग फॉर एनहांस्ड डिफेंस कंप्राइजेस स्पॉटेड ऑफ डाइवर्स PRRs to the plasma membrane, thereby enhancing the plant's responsiveness to different pathogen associated molecular patterns or PAMPs and damage associated molecular patterns. तो इसमें क्या होगा? डिफरेंट कंपोनेंट्स डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए वर्क करेगा, जैसे कि बैक्टीरिया के लिए
PRRs कौन से होंगे, FLS2 और PAC1। देन फॉर पेप्टिडोग्लाइकन LYM, ये भी बैक्टीरिया में ही होगा, पेप्टिडोग्लाइकन एंड FLG22 यहाँ पे कंपोनेंट्स फॉर PAMP एंड DAMP। फिर फंगल के लिए आप अगर याद रखना चाहते हैं तो CERK1 फॉर काइटिन एंड CBPK फॉर काइटेजान। वॉक जीन्स होते हैं, ये सब आप याद रखिए। देन डॉर्मेंट माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेसिस, इसमें क्या होता है, डिफेंस रिस्पॉन्सेस आर रेगुलेटेड बाय अ कॉम्प्लेक्स सिग्नलिंग नेटवर्क दैट इंक्लूड्स MAPK कैस्केड आफ्टर प्लांट recognition of the pathogens by PRR. MAPK can control the synthesis and signaling of defense hormones, reprogram gene expression through phosphorylation of target proteins including enzymes and transcription factors. तो यहाँ पे मैंने सर्टेन प्लांट MAPKs को लिस्ट किया है, जैसे कि ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D, ऐसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ MAPKs है। नेक्स्ट प्राइम ओम आता है, एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे RNA का फंक्शन होता है। इट इज़ द एंटायर सेट ऑफ mRNA मॉलिक्यूल और ट्रांसक्रिप्ट प्रोटीन्स और मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस्ड और मॉडिफाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म और सिस्टम ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्राइमिंग इन प्लांट्स। तो प्राइम ओम में क्या होता है, ये एक mRNA मीडिएटेड मैकेनिज्म होता है जिसमें ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन और ट्रांसक्रिप्ट्स प्रोटीन मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होता है विच आर मॉडिफाइड बाय ऑर्गेनिजम्स और सिस्टम ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्राइमिंग इन प्लांट्स। तो प्राइमिंग मॉडरेट हुआ रहता है किससे, ट्रांसक्रिप्ट प्रोटीन एंड मेटाबोलाइट से। तो मे भी टेम्परेचर मतलब अबायोटिक स्ट्रेस होता है और अबायोटिक स्ट्रेस होता है जिसमें जीन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो ट्रांसक्रिप्ट प्रोटीन एंड मेटाबोलाइट से प्राइम ओम होता है और प्राइम ओमिक्स इसको हम कहते हैं, इसी के स्टडी को हम ओमिक्स कहते हैं। ओके, तो प्राइम ओमिक्स अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे, द टोटालिटी ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल प्रोटियोमिक एंड मेटाबॉलिक डेटा अवेलेबल टू डिस्क्राइब द प्राइमिंग ऑफ प्लांट्स और इट्स द स्टडी ऑफ प्राइम ओम। नेक्स्ट, ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। द प्राइमिंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 3 क्लियर स्टेज। तो प्राइमिंग क्या होता है, 3 स्टेजेस होते हुए इसमें। फर्स्ट वन इज प्री चैलेंज प्राइमिंग स्टेज, जिसको प्राइमिंग स्टेज भी बोलते हैं। यहाँ पे दिस इज एन इनिशियल फेज ऑफ रेजिस्टेंस इंडक्शन वेयर द प्लांट इज प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर अटैक बट हैज़ नॉट एट बीन चैलेंज्ड बाय अ पैथोजन इज कॉल्ड प्राइमिंग फेज। मतलब प्री प्राइमिंग फेज में पैथोजन का अटैक नहीं हुआ रहता है, लेकिन प्लांट रेडी रहता है सारा हथियार लेके कि आई एम गोइंग टू अटैक और फाइट नाउ। ओके, तो इस फेज में क्या होता है It lies between the perception of the priming cues and first exposure to the future stress. During this time slot, the plant generates and stores information that will enable it to display faster and more accurate response to stress. सेकेंड स्टेज होता है पोस्ट चैलेंज प्राइमिंग स्टेज। इसमें क्या होता है, दिस फेज स्टार्ट्स विद द एक्सपोजर टू ए स्ट्रेस और चैलेंज बाय द प्लांट। इन प्राइम्ड प्लांट्स cellular defense responses are not activated directly by the priming agent but are memorized and expressed in an accelerated manner after the accumulation परसेप्शन ऑफ ए सेकेंड बायोटिक और अबायोटिक स्ट्रेस सिग्नल। मतलब पैथोजन अटैक होने के बाद में जब सिग्नल परसेप्शन होता है उस टाइम में जो एक्सप्रेशन मिलता है दैट इज़ नथिंग बट द पोस्ट चैलेंज प्राइमिंग स्टेज। इसमें क्या होगा, the time slot the plant has strong up or down regulation of gene activity that will enable it to deploy faster and more accurate response to stress। मतलब यहाँ पे प्लांट पूरा काम करने में लग जाता है। एंड द थर्ड इज ट्रांसजेनरेशनल प्राइमड स्टेज। इसमें क्या होता है, प्राइमिंग फॉर एनहेंस्ड रेजिस्टेंस also extends to next generations like the progeny of the primed parental plants show resistance to the stress against which it have been primed। जैसे आप जानते हैं कि पेरेंटल जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होते हैं, मतलब इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर टाइप हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक होमवर्क दूंगी कि कमेंट सेक्शन में बताना कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर किसने कॉइन किया था या किसने बताया था और किस साल में। ओके, दैट इज़ एन असाइनमेंट टू
प्लांट ब्रीडिंग स्टूडेंट्स और पैथोलॉजिस्ट हुमेवर इट में भी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, तो इसमें देखिए पेरेंट एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एक्वायर करता है और उसी प्राइम्ड थिंग को हम नेक्स्ट जनरेशन और प्रोजनी में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप समझ गए प्राइमिंग प्रोसेस का 3 स्टेजेस होते हैं। एक प्री चैलेंज फेस हो गया, देन पोस्ट चैलेंज फेस हो गया, देन ट्रांस जनरेशनल मतलब जनरेशन टू जनरेशन प्राइमिंग स्टेज हो गया। तो इन सारे स्टेजेस में कौन से कंपोनेंट्स ऐड हुए हैं या कौन से एसिड्स और मेटाबोलाइट्स एक्सप्रेस करते हैं, यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आइए, तो प्राइमिंग फेज में TCA मेटाबोलाइट्स, अमीनो एसिड्स, शुगर्स, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, पैथोजन रिलेटेड प्रोटीन्स, सैलिसिलिक एसिड और PRs ये सब एक्ट करते हैं। पोस्ट चैलेंज प्राइमरी स्टेज में ग्लूकोसिनोलेट्स, फाइटोअलेक्सिन्स, फिनोलिक्स, कैलोस, PRs, सैलिसिलिक एसिड, जास्मोनिक एसिड ये सब करते हैं। देन ट्रांस जनरेशनल प्राइमरी स्टेट में फिर से जास्मोनिक एसिड, PR, शुगर्स, अमीनो एसिड्स एंड हिस्टोन मॉडिफिकेशन। देखिए ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी हम जनरेशन टू जनरेशन और इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो हिस्टोन मॉडिफिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट स्टेजेस ऑफ प्राइमिंग। तो देखिए कैसे डिफरेंट स्टेजेस में फिर से कंपोनेंट में सब कंपोनेंट्स एक्ट करते हैं। जैसे कि आप देखिए प्री चैलेंज प्राइमिंग स्टेज में जब हमने शुगर्स लिया है तो फिर से शुगर में मायोइनोसिटॉल, xylitol, काइटोस, GA3 ऐसे फिर से सब कंपोनेंट कैसे एक्ट कर रहा है एट डिफरेंट स्टेज में, ये यहाँ पे मैंने स्लाइड में बताया है। ओके, तो नेक्रोट्रोफ, बायोट्रोफ और जो भी बायोटिक हो या अबायोटिक स्ट्रेस के लिए हो, सबके लिए कंपोनेंट एक्सप्रेशन अलग अलग होता है। जैसे कि देखिए नेक्रोट्रोफ के लिए जास्मोनिक एसिड ABA, OPDA क्या होता है 12 ऑक्सो फाइटोडायोनिक एसिड, फिर पॉलीफिनॉल्स और कॉमेरिक एसिड डेरिवेटिव्स ये सब नेक्रोट्रोफ के लिए वर्क करता है। उसके साथ में बायोट्रोफ के बात करें अगर हम तो अमीनो एसिड, सैलिसिलिक एसिड MESA, पाइपेकोलिक एसिड G3P और अजेलाइक एसिड ये सब मतलब डिफरेंट कंपाउंड्स बायोट्रोफ में, नेक्रोट्रोफ में मतलब बेस्ड ऑन देयर फीडिंग हैबिट ये सब डिफर करता है और किस पार्ट ऑफ सेल में ये एक्यूमुलेटेड है। मे बी इट इज़ इन द प्लाज्मा, आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल पे या फिर न्यूक्लियस में कहाँ पे ये पर्टिकुलरली वर्क कर रहा है इस पे भी डिपेंड करता है। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं डिफेंस अगेंस्ट आर्थ्रोपोड्स। डिफरेंट कंपोनेंट के लिए डिफेंस अलग अलग होता है। जैसे कि डायरेक्ट डिफेंस प्राइमिंग होता है, इनडायरेक्ट डिफेंस प्राइमिंग होता है। यहाँ पे आर्थ्रोपोड्स सिर्फ एक एग्जाम्पल है। तो डायरेक्ट डिफेंस प्राइमिंग कैसे होता है, दिस कैन बी अचीव्ड थ्रू आइदर केमिकल और नेचुरल स्टिमुलाई। इसमें क्या होता है, स्टेम फ्रॉम arbuscular mycorrhiza, non-pathogenic rhizobacteria or various arthropods cues such an oviposition or insect wounding. In priming against arthropods, abscisic acid or ABI is a key regulator that activates defense coordinately with jasmonic acid and systemic dependent signaling. तो indirect में क्या होता है, this is more diverse. यहाँ पे enhancement of defense responses in neighboring plants and also more efficient attraction of predators. Primary defense is surrounding plants activating असाइमिन सिंथेस विच कैटलाइज द एक्यूमुलेशन ऑफ B ऑसिमिन। तो देखिए ये दोनों कंपोनेंट अलग अलग है। जैसे कि डायरेक्ट डिफेंस प्राइमिंग में क्या होता है, प्लांट इटसेल्फ में एक एक्टिविटी रेगुलेट होता है, लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है, दिस इन्फ्लुएंसेस द नेबरिंग प्लांट्स ऑल्सो। मतलब नेबरिंग प्लांट्स में सिग्नल मॉलिक्यूल्स एक्टिव होते हैं, उसके वजह से क्या होता है, जो मेन प्लांट है वो सेफ होता है, उसके साथ साथ में नेबरिंग भी सेफ होते हैं। ओके, दैट इज डिफेंस अगेंस्ट इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैनर। नेक्स्ट देखते हैं एडवर्स इफेक्ट ऑफ प्राइमिंग। जैसे मैंने बताया था कि प्राइमिंग 100% नहीं होता है, मतलब इट अगेन डिपेंड्स ऑन स्पीशीज, द एनवायरमेंटल फैक्टर्स और क्लाइमेटिक कंडीशंस वेयर एग्जैक्टली द प्लांट इज लोकेटेड, फिर किस टाइप ऑफ स्ट्रेस उस पर इम्पोज किया हुआ है, ये सब प्राइमिंग पे अफेक्ट करता है। जैसे कि स्टिमुलेशन लेवल दैट इज टू हाई माइट लीड टू डायरेक्ट रेजिस्टेंस इंडक्शन, दस कॉम्प्रोमाइजिंग फिटनेस। जैसे कि प्राइमिंग हमेशा मतलब कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन बहुत सारे जीन्स के होते रहेंगे तो क्या होगा,
प्लांट के फिटनेस क्वेश्चन में आ जाएगा, फिटनेस विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड, प्लांट्स कैन बी मोर प्रोन टू रिस्पॉन्डिंग टू फॉल्स अलार्म सिग्नल्स दैट डू नॉट रिप्रेजेंट ए थ्रेट। तो इसमें क्या होता है, कॉजिंग देम unnecessary reallocate energy resources, most prominent challenge in the field, many abiotic and biotic stress happen concurrently। मतलब हम अगर एक चीज़ के लिए प्राइमिंग करने जाएंगे तो दूसरे चीज़ में हम कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया था कि अलग अलग स्ट्रेस के लिए अलग अलग कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो हम कंपोनेंट वाइज अगर स्टिमुलाई देना चाहते हैं तो क्या होता है कि वी कांट एक्सपेक्ट कि टू, अगर हम कंट्रोल्ड कंडीशन में प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं दैट इज़ अ डिफरेंट सिचुएशन। लेकिन हम अगर फील्ड कंडीशन में जा रहे हैं तो हम एनवायरनमेंट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। मे बी इस साल ज़्यादा बारिश हो सकती है या पैथोजन, कोई नया पैथोजन आ सकता है या रेजिस्टेंस रिस्पॉन्स डेवलप हो सकता है, तो ये सब फैक्टर बहुत ही डिपेंड करता है। लिटिल इज़ नोन अबाउट हाउ प्लांट देन सेट द डिफेंसिव प्रॉपर्टी दैट मेक्स इट डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द रिएक्शन एंड obtain a robust and broad spectrum resistance response, effect of climate change और stress response, ये सब adverse effect प्राइमिंग पे डालते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ प्राइमिंग में डिफरेंट कंपोनेंट्स वर्क करते हैं, जैसे कि केमिकल एजेंट्स लाइक बाबा, BTH, प्रोबेंजोइल, असीबेंजोइल और एक्टिगार, देन फॉसेटिल AL, मेटलाक्सिल, स्टोम्बिलुरिन, pipecolic acid and azelaic acid, biopriming agents like trichoderma aspergillum, then bacillus subtilis, trichoderma fertile, mycorrhiza, काइटिनसान, ये सब बायोटिक फैक्टर्स है। देन केमिकल एजेंट्स तो दिया ही हुआ है। तो अब देखते हैं एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ प्राइमिंग। एडवांटेज ये है कि इको फ्रेंडली अप्रोच है, एप्लीकेशन रेट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स को रिड्यूस करेगा। देन द बायोप्राइमिंग एजेंट हेल्प्स प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सो मेंटेन द क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस विदाउट एनर्जी कॉस्ट ऑफ द प्लांट, मतलब प्लांट का एनर्जी लूज नहीं होगा, एक क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए हेल्प होगा। ओके, लिमिटेशंस क्या क्या है। प्राइमिंग हम पैथोजन इन्फेक्शन से पहले ही देना होगा। तो क्या होता है, पैथोजन कौन सा इन्फेक्ट होने जा रहा है ये हमको बहुत सारे कंडीशंस में पता ही नहीं रहता है, तो उस टाइम में क्या होता है, जो भी हमने एफर्ट एंड रिसर्च किया है वो वेस्ट हो जाएगा। ओके, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। देन प्राइमिंग कंपाउंड्स डू नॉट टेंड टू हाईली स्पेसिफिक विच कैन बी एन एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अगेन सिचुएशन पे डिपेंड करता है। मेजर लिमिटेशन ऑफ केमिकल प्राइमिंग कंपाउंड इज देयर डोज एप्लीकेशन, बिकॉज इम्प्रॉपर डोज कैन कॉज फाइटोटॉक्सिसिटी एंड कैन एग्जॉस्ट द प्लांट इटसेल्फ। जब हम केमिकल एजेंट्स को यूज़ करके इंड्यूस करना चाहते हैं तो डोज फिर से और स्टेज ऑफ प्लांट मैटर करता है, बहुत सारे यूज़ करने से टॉक्सिक भी हो जाता है। तो फाइनली मैं कंक्लूड करना चाहती हूँ कि अब तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, प्राइमिंग क्या होता है, तो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या से होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्राइमिंग क्या क्या होता है, प्लांट में प्राइमिंग कैसे किया जाता है, जो सेल के कौन से पार्ट्स होते हैं जिसमें प्राइमिंग रिस्पॉन्स होता है, किस टाइप में नेक्रोट्रॉफ बायोट्रॉफ में प्राइमिंग एक्सप्रेस होता है, सिस्टमिक अक्वायर्ड रेजिस्टेंस एंड इंड्यूस्ड सिस्टमिक रेजिस्टेंस, जो दो इम्पॉर्टेंट फेनोमेना है प्राइमिंग, इन सब चीज़ों को हमने यहाँ पे पढ़ा। फिर MAPK, DAPK सब हमने देखा कि ये सब क्या है। We expect the emerging knowledge will increasingly translate defense priming to practice, thereby improving sustainable agriculture। अगर हम प्राइमिंग को एक अच्छे लेवल पे स्टडी करते हैं और उसको हम अगर डे टू डे अपने एग्रीकल्चर में यूज़ करने जाते हैं तो क्या होगा, डिफरेंट कंपोनेंट्स और पेस्टिसाइड, अकैरिसाइड, फंजीसाइड, वीडिसाइड जो भी हम यूज़ करते हैं उसका यूसेज हम कम कर सकते हैं, इको फ्रेंडली लाइफ जी सकते हैं। और जितने भी हम आजकल केमिकल से प्रॉब्लम झेल रहे हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है या पोल्यूशन हो सकता है, इन सारे चीज़ों को हम कम कर सकते हैं और नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट दे सकते हैं। We believe that priming compounds will have an impact on future agriculture practices by providing the farmer with new option for disease management in respect to both application rate and frequency. Prime omics is an integrated approach for defense priming which involve different techniques
spanning the fields of transcriptomics, proteomics, metabolomics together with the adequate bioinformatic tools। तो सबसे अच्छा चीज़ क्या है? प्राइम ओमिक्स, जिसमें मैंने जैसे कि बताया था mRNA का स्टडी किया जाता है और रेगुलेट किस स्टेज में किया जाता है, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शनल, मेटाबोलोमिक एंड प्रोटियोमिक स्टेज में। उसके साथ में बायो इन्फॉर्मेटिक टूल को भी हम इनकॉर्पोरेट करके इसका स्टडी एंड इम्पोजिशन करते हैं। प्राइम्ड प्लांट्स शो फास्टर एंड स्ट्रॉन्गर डिफेंस रिस्पॉन्सेज व्हेन सब्सिक्वेंटली चैलेंज्ड बाय माइक्रोब्स, इंसेक्ट्स, biotic stress. This is frequently linked to development of local and systemic immunity and stress tolerance. Availability of rapidly growing transcriptomics, proteomics, and metabolomic data sets. The primeome describes the state of primed plants. Knowledge of primeomics can be exploited for a better defense modulation in plants. तो ये सब रिसर्च से हम क्या कर सकते हैं? ओमिक्स टेक्नोलॉजी को इम्पोज करके प्राइमिंग को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। तो फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं? Development of functional genomic tools for enhanced resistance, that is interaction between defense signaling and other plant processes. Designing the new tools and techniques that can be used for identification of priming activators. फिर deciphering the impact of endophytes. Endophytes क्या होता है? Beneficial microbes that live inside a plant in priming and induced immunity. Development and identification of new priming activators for the management of diseases. ये सब क्या है? फ्यूचर में हम प्राइमिंग पे स्टडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बताना। I'll just let you know what is the exact thing. तो अगर कोई डाउट नहीं है तो और भी अच्छा है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ कीप ऑन liking, subscribe, comment. Thank you for watching. Namaste. Jai Hind.